جناب خانزادہ صاحب، جناب شہر صاحب، مجھے خانزادہ صاحب نے صحیح کہا کہ وہ پہلے سے مجھے کوئی باقاعدہ کیونکہ اشفاق پر کچھ کہنے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے بڑی، ویسے تو بہت ان کے کام پر بات کرنے کے لیے بہت تیاریوں کی ضرورت ہے. میں بہت چیزوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ذاتی طور پر اشفاق حسین کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اشفاق حسین سے یہ رشتہ 2 4 10 20 برس کی بات نہیں ہے، کوئی 50 برس کا قصہ ہے. ہم اپنے جو زمانہ قلندری کے زمانے سے ہم ساتھ ہیں. اشفاق بڑے جذباتی طور پر اپنے کورنگی کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہاں کے اس زمانے کے جو ہمارے جو سال تھے ہماری زندگی کی جدوجہد کے، اور اس کے علاوہ بھی جو کہ مجھے پرانی جدوجہد کہہ لیجیے اگر آپ تو اس زمانے سے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ مجھ سے پہلے یہ میرے والد صاحب کے دوست تھے. تو یہ اشفاق عمر میں ہم سے کم ہے، 1 سال کم ہوں گے، لیکن یہ ادب کے اور شاعری کے اور اس حوالے سے ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے، اور کیونکہ ان کا کام بہت بڑا ہے. انہوں نے جو ہے وہ جو کام کیا انہوں نے، اور اس کو کئی اس کی جہتیں ہیں، کئی حوالے ہیں، اس کا کوئی ایک حوالہ نہیں ہے. شاعری ایک حوالہ ہے، لیکن صرف شاعری حوالہ نہیں ہے. ان کا اور بہت ان کا شاعری کی جہاں تک بات ہے، شاعری کا تو ان کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی وجہ میرے آنے کی یہ بھی تھی کہ میں سننا چاہتا ہوں. جب دوست ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، شاعری کی بات نہیں کرتے، شاعری نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں. تو کم از کم آج میں بیٹھ کر آرام سے اشفاق سے ہم سنیں گے بھی. اور میں اشفاق کی شاعری کا یعنی اس وجہ سے نہیں کہ ان سے میری دوستی ہے، میں بڑے دل سے واقعی قدردان ہوں. اور اس کی میں آپ کو گواہی اس بات سے میں آپ کو دوں گا کہ ہم آسٹریلیا میں سڈنی میں انٹرنیشنل مشاعرے کراتے ہیں. ہم نے کسی کو ایک سے دوسری بار نہیں بلایا سوائے فراز صاحب نے، اور اشفاق کو لگاتار 2 بار وہاں کے انٹرنیشنل مشاعروں میں کینیڈا سے سڈنی، جو کہ دنیا سے دوسری دنیا کا سفر ہے، ان کو وہاں پر ہمیں بلایا. بہت ان کی بڑی فالوئنگ ہے، ان کی شاعری کے بہت بڑا قدردان لوگ ہیں. تو شاعری ایک حوالہ ہے، لیکن شاعری سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ تحقیقی کام، معرضی کام. یہاں ہمارے ساتھ دوست بیٹھے ہیں، یہ ہوگا وہ کام ان کا بڑا کام ہے. انہوں نے صرف فیض صاحب ہی کے حوالے سے نہیں، اور بھی کئی حوالوں سے انہوں نے کام کیا. انہوں نے پہلی بار ایک انٹرنیشنل جریدہ اردو انٹرنیشنل کے نام سے انہوں نے نکالا، جس کا کہ نام فیض صاحب نے تجویز کیا تھا. فیض صاحب، فراز صاحب، یہ سب کینیڈا میں انہی کے گھر میں مقیم رہے ہیں. تو وہ رسالہ بھی ایک بڑا، ایک دفعہ میں نے ان سے سب کاپیاں اس کی منگوائی تھی، اور وہ بھی ایک ان کا ایک بڑا کام ہے. فیض صاحب پر تو بہت ہی حال ہی میں جو ان کی ایک بہت ہی مجلد کتاب آئی ہے. یہاں سے سامان لے جانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں ان کی کتاب پچھلی بار آیا تو لے کے گیا تھا، میں لے کر گیا پڑھی میں نے کی. اس سے پہلے بھی فیض صاحب پر ان کی کئی کتابیں ہیں، فراز صاحب پر ان کا کام ہے ان کا. اور یہ ان کی کام کی کئی جہتیں ہیں کئی. اور دوسرا ایک بڑا کام جو ہے انہوں نے، دیکھیے آج تو بہت امریکہ میں، یورپ میں کہاں مشاعرے میرا خیال بے شمار لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں. لیکن جو اس کی بنا خاص طور پر شمالی امریکہ میں یعنی جو اشفاق نے ڈالی ہے، وہ بہت بڑا ان کا ایک کام تھا کہ اس وقت جب کہ بہت محدود تھا دائرہ ہمارے ادب کا، اردو ادب کا خاص طور پر باہر. ایون انہوں نے جعفری نے، ہمارے جو دوست تھے دبئی میں، انہوں نے بھی وہ بعد میں کام شروع کیا جو جشن بناتے تھے ہر سال. اور وہ تھوڑا سا
नई कमर्शियल नई मदद की काम होता, लेकिन अशफाक ने बड़ी मतलब गैर नॉन कमर्शियल बड़ी जेन्युइन थी जो है वो काम किया। और वैसे ये नहीं देखिए मुशायरा कराना वो काम नहीं है, आपने मुशायरा कराया यहाँ से बुलाया वहाँ से बुलाया लोगों ने मुशायरा करा, लेकिन उसमें इन्होंने वहाँ पर एक जो उर्दू की एक का जो माहौल बनाया तहकीक और का जो माहौल बनाया, वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनको इन्वॉल्व किया, वो सारे लोगों ने मिलकर जो वहाँ अली सरकार के आखिरी में बड़ा काम तर्जुमे बहुत हुए सब लोगों के उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमे, वहाँ के जो बड़े कैनेडियन वहाँ के शायर थे यूनिवर्सिटी के लोग थे उनके हवाले से मिलकर ये छोटे ये बड़े काम है। और आपको मैं बाहर रहता हूँ छोटा बड़ा, मैंने भी यहाँ काम करा था, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ये कहता हुआ कि आपने मुशायरा करा लिया, इंटरनेशनल लोगों को बुलाया, रखना मुशायरा पढ़वाया से, लेकिन ये कि उसको डेप्थ के साथ उसकी पूरी गहराई के साथ जो इन्होंने मुख्तलिफ सब जो इन्होंने किए हैं, मैं तो समझता हूँ कि मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल काम है जो इन्होंने किए हैं और अभी तक वो बाकायदगी से कर भी रहे हैं। मेरा ख्याल ये खानजादा साहब ने भी यही कहा था कि ज़्यादा गुफ्तगू के बजाय वो खुद मौजूद है यहाँ पर, हमें उनसे सुनना चाहिए, उनसे उनके तयबार जो है उनके बारे में हमें जानना चाहिए और फिर उसके बाद उनकी शायरी हमें सुननी चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तो और कुछ नहीं कहूँगा, तो हम ये वजह से मैं खुद यहाँ मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह वो ज़्यादा सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मौजूदगी जो है वो बड़ी बाइस तकलीफ है, सारे दोस्त अगर उनके साथ बरसों रहा है इस शहर से ताल्लुक, तो उनकी मौजूदगी में ऐसे ही यहाँ पिछली दफ़ा में आया था तो चाय पी रहे थे तो खानजादा साहब कहने शायरी आपकी सुन रहे तो शायरी दो तीन चीज़ें याद हैं वही पढ़ लेते हैं, की आसानी भी होती पढ़ने में, तो मैं कहती कुछ और चीज़ें जो लिखी हुई हैं उनसे पढ़िएगा तो सिर्फ शायरी हो जाएगी। तो मैं आज गुफ्तगू का भी शोशा दिया, तो गुफ्तगू जाहिर है कि हमारी मेरी तो सारी गुफ्तगू भी एक तो अरशद शाह साहब यहाँ मौजूद है और दूसरे की मेरा अपने जज्बाती ताल्लुक, मेरी सारी गुफ्तगू का है ज़िंदगी का आगाज़ कोरंगी से शुरू होता है और हमारे कोरंगी के जो कोई आदमी मिल जाता है तो ग्राही है और शायद शाम बैठे नहीं लोग। और इधर हम वहाँ की जुगियाँ थी यार बस्ती थी जेल के पीछे, तो हमारी जो जुगियाँ थी वो बड़ा अदबी माहौल होता था वहाँ का। हमारी जुगी से बिल्कुल मिली हुई जुगी नक्काश काज़मी की थी, उससे मिली हुई जुगी शब्बार आज़मी की थी, तो हम सब साथ मतलब जो है ये नक्काश वगैरह थोड़ा सीनियर थे। फिर जुगिया जब कोरंगी चले गए तो वहाँ से कोरंगी से इधर आना, इसको हम लोग कहते हैं शहर जा रहे हैं। जब अभी भी आदत है और मेरी भाभी ने वहाँ कैंट में रहती है, खाने में नहीं हम जाने लगे कैंट में उधर ही रहेंगे सदर उधर की तो शहर जा रहे हैं, लेकिन आप हमको गाँव का समझते हैं। मैंने कहा हमारे बारे में कोरंगी वाकई बहुत दूर थे, आधे घंटे तक बैठे रहते थे, चले जाते थे गर्द में तूफान में सब, तो वहाँ पे गए तो वहीं पर क्या कहते हैं उससे पहले जो शायरी का आबिद साहब हमारे था कि हमारे चचा वगैरह ये पुराने मजहबी शायरी जो 3 मिलाद हमारे ख़ानदान में होते थे, एक जनाब रसूल खुदा की मिलादत पे होता था, एक इमाम हुसैन पे, एक ख़ानदानी थे, चले आए बस 150-200 साल से इंडिया से चले आ रहे हैं। तो उसमें हम वो पढ़वाते थे शुरू में, तो पहले इंग्लिश इसका कलाम पढ़ते थे, छोटे थे शौक होता था मिम्बर पे बैठेंगे, बड़ी बात होती थी। उसके बाद अब तरी महफिल जरा पार्टी लगी 10वीं में आया तो देखा मिसरे बराबर होते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमें लिख के दें, हम ये भी पढ़ेंगे, तो वो साल में जो अच्छा 6-7 शेर लिख लेते तो हमारा तहल्लुस भी डाल देते तो उसमें वो तजुर्बा हुआ। फिर एक दफ़ा ये क्रिकेट खेलने में गया तो बताया कि फौरनी में करेंगे यहाँ वो मुशायरा अदबी महफिल हो रही महफिल हुई थी, तो उनका मुशायरा पहला कभी देखा नहीं था ना कभी सुना था, रेडियो पे सुना था सिर्फ, टीवी था ही उस ज़माने में, तो अच्छा लगता था टीवी रेडियो पे सुनते थे, लेकिन ये देखें कि गज़ल का मुशायरा होता कैसे। ये वो क्रिकेट खेलते आए थे, 2-3 दोस्त खेलने आए चलते हैं, मम्मा गए तो
कई नौजवान आके उनका घर में चला चादर वादर बिछाओ और पत्थर वत्थर उठाते चांदी दो वहाँ बैठते। तो राधा सुंदर राधा जब बहुत हम क्या भी पढ़ने चाहिए। तो मुझे अपने पापा की एक गजल याद थी और वो जो मेरे दोस्त थे उसने भी दिल शादा पूरी भी याद थी। हम घर जाके जैसे चाय के बाद पढ़ दी पहली दफा हुआ। तो हमने जैसे वहाँ पढ़ते थे मजलिस में वैसे हमने कहा ये सब पढ़ हम भी पढ़ी यह नहीं पता थी सब शायद है। 2-3 दिन बाद वो मिले तो कहने लगे कि भाई आप जो है वो बड़ी अच्छी आपने गजल पढ़ी। मैंने कहा जी मैंने वही अपनी तरफ में सेट किया था शुक्रिया है। कहने लगे कि मम्मी आपने लिखी बच्चे मेरी तो नहीं मैंने लिखी वो तो मैंने पढ़ी थी। मैं क्या आपने शायद में लिखा कुछ मैं 17 साल मैट्रिक का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे 16 साल की उम्र में हमने लिखी तो नहीं थी तो पढ़ी थी हमने पढ़ी थी आपने तो बताया नहीं देखा ना मैंने किसी ने पूछा ही नहीं। तो इस तरीके से ये शोहरत हो गई थी देखो आके पढ़ते हैं काफी ऐसे था। लेकिन शायरी वाली का शौक सर्किल बन जाता था उसमें। तो ये तबार ऐसा टाइम हुआ कि जगह हमारे मंथली महाना निश्चित थी 2-3 साल बाद जब कॉलेज में आ गए तो जब भी गजल वजल कहते थे तो महीने में कई शेर होते थे बड़ी मुश्किल से तो हुए। तो मैं पापा को जाके दिखला देता था कि मेरा मुज़क्कर हमने उसको देख लें। वो मिले नहीं आली जौनपुरी साहब का आपको बात वो मिले नहीं। तो दूसरा हमारे चाचा थे जफर जौनपुरी साहब वो भी नहीं मिले। अब नई गजल जब उस जमाने में कहते तो लगता था कि यही जो है शाहकार है पूरे उर्दू अदब का ऐसे ख्याल होता था आपस में। तो वो बड़े वजह की तो जाके मैंने वहाँ पढ़ दिया। हमारे कॉलेज में रहने का बड़ा अजब माहौल था। जैसे 3-4 बुजुर्ग थे जो मुशायरा में वो कंट्रोल करते थे अदबी सीन को। एक थे डॉक्टर तकी देवी साहब उनके 8-10 शागिर्द थे। डॉक्टर रामा बेताब नज़ीरी साहब थे उनके 8-10 शागिर्द थे। ये अख्तर सईदी के वालिद से जोहर सईदी साहब उसकी वजह से और मशहूर शायर हमारे कॉलेज में यानी खालिद अली साहब थे सहबा अख्तर साहब थे अली नशर ततारी नसर चुगताई तो एक बड़ी हमारी आँखी फजल थी। तो वो मैंने जाकर तरन्नुम का फरने पर फिक्की भी करा था और जाके मैंने वहाँ पढ़। तो ये तीनों बुजुर्ग कहते तो मुझे लगा कि 2-3 मिनट तक तो खामोशी से रही फिर कुछ एकदम से दाद देने लगा मुझे गड़बड़ हो गई है। तो फिर जब नमक पारे का चाय का वक्फा हुआ तो एक बुजुर्ग जो ने बिठाया ताकि सामने वो दाद देवी की बोत के खिलाए लगे कहते आपने वो गजल दिखलाई तो नहीं होगी इनको कैसे पता चल गया कि सीक्रेट नजरिए क्या है। मैंने कहा इस साल मैंने कहा साहब मैं गया था 2-3 दफा वो तो बस पे जाते थे आधे घंटे जा रहे हैं नहीं लगता टिका के वापस आ गए यही होता था तो ना फोन ना कुछ। तो मैंने कहा कि यार बताया तो मैंने कहीं साहब को मैं दिखला नहीं सका क्योंकि बेटा आपको पता है कौन सी जमीन बस मैं कही बेटे ये दुबई की बहन है और इसमें गजल नहीं दी जाती। मैंने कहा साहब तो पता नहीं था उनकी टक्कर में जब दूसरे उस्ताद बैठे तो मैंने वहाँ कहेंगे इसमें आपने 13 शेर पढ़े इसमें से 5 शेर जो है वजन में थे। अच्छा तो जब उन्होंने मेरे का तो बराबर में दूसरे साहब उनके टक्कर में जो उस्ताद थे उन्होंने कहा बच्चा तुमसे तो लेता है 2.5 रुपए कहती तुमसे तो एक भी नहीं हुई। उसके बाद ये हुआ कि पहले जब शुरू में तो वो बात टाइम हुआ क्योंकि अगली नशिस्त में जब हम गए तो पहले होता था कि जैसे जब यहाँ मुशायरा 6 बजे तक तो अगर शायर होते हैं मुशायरा होता मैं तो कोशिश करता था लेट जाए ताकि कुछ समय ही हो। वो जो उस्ताद थे उनसे भी रात चला कि जब हम आते थे जब ही शुरू करते थे पहले नंबर पे। तो उसके बाद जब मैं महफिल में गया तो वो पहले मेरा हस्बैंड मतलब दस्तूर मेरा नाम बताया गया तो तीनों में कहीं नहीं गया शपथ यहाँ बांध पड़ी पहले और कुछ लोगों को बोला तो रेपुटेशन कॉन्फिडेंस फिर यूनिवर्सिटी चले गए। उस जमाने में जो अक्षर साहब की वजह से इनका वालिद था इनके वालिद उस्ताद थे तो वह एक वहाँ मोहम्मदी कैफे था ऐसे चाहे वहाँ बैठते थे तो वो आके अपने सिगरेट में आके पीते थे 2 उस्ताद थे। हाँ मैं उन लोगों ने कहा हुआ है हम लोग भी चाय भी पीते थे तो उससे इनके वालिद से लेकिन अशरफ का नाम जो है स्टूडेंट मशायरे के ज़माने में उस वक्त ही मशहूर है जब हम अभी कॉलेज में गए थे बज़्म तलबा यहाँ की थी बहुत यादगार
को अवार्ड मिला था, तो खुश होते हुए हमें कुरान मिला कि दोनों नताश काजी को मिला नज़्म का और इनको मिला गज़ल का। मुझको भी बड़ निसाब हूँ, मज़मून ख़ास हूँ, मेहमाना तेरे निसाब में शामिल है, मुझको भी बड़ किताब हूँ। तो ये उर्दू कॉल से थे और वो भी ये भी बड़ा तो हमारे अच्छा फिर कुरानी में कौन आता है जराइम का जैसे कहते हैं ना पंजाब में होता है, वो हमारे कुरानी में भी है। तो अब दिमाग को कोई मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो उसमें हमने इन्होंने वहाँ ये किया कि NSF का जो सियासी वाबस्तगी थोड़ी सी कि नखा स्पेशली जो शब्बार आज़मी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ कोरंगी लाडी स्टूडेंट फेडरेशन बनाई, जो कि NSF मेरा मोहम्मद खान गुरु की ज़ेली शाख थी। तो उस बहाने हमने अपने खुद ब खुद जैसे मेरा साहब के ग्रुप में शामिल हो गए और क्या कहते हैं फिर ये भुट्टो साहब का ज़माना आया, इसमें शामिल हुए। तो और फिर कोरंगी पीपल्स पार्टी का हमारे घर में दफ्तर भी बन गया, उसमें शामिल हो गए। पहली दफ़ा बड़ा मजमा जो है वो भुट्टो साहब की तकरीर थी, 31 मई को यौम शौकत इस्लाम मनाया गया था। उसके अगले हफ्ते जून के पीपल्स पार्टी का जलसा था कोरंगी लाडी में। उसकी ख़ास तारीख ऐसी थी कि उसी जलसे में मौलाना कौसर न्याजी ने शमूलियत अख्तियार की थी पीपल्स पार्टी में। तो जलसा चला था मजदूरों पर हज़ार के करीब लोग थे, लाखों में हज़ारों में कम थे। स्टेज इतने बड़े बड़े तकाले बने थे, तो उसमें हमें भी चूँकि मकामी इंतज़ामी शायर थे तो हमें भी मौका मिल गया। तो उसमें मेरा नाम था। उस ज़माने में पॉलिटिक्स चली थी कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए कि ना लिया जाए। बादशानी साहब और मेरा खान ये इनकलाब कहते थे कि इलेक्शन नतीजा नहीं है, और क्या कहते हैं दूसरा कहीं में हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी के ज़माने की है, हम लोग कई राइटर्स को बना था, तो उसमें साथ में हमारे अफसार निगाह थी, साथ से बाद में शादी हुई, हम तो इसी नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर वो एक सियासी फजा होती पॉलिटिकल, तो उसमें मैंने कहा इनकलाबी गान, तो हम तो गज़ल वज़ल कहते थे, तो वो भी मिसरे तरह पे अभी इनकलाबी शायरी कैसे खिलाती है। तो मैंने कहा ये कोई पॉइंट है, तो मैंने कहा ये पॉइंट अच्छा कि मेरा नमर साहब और बादशानी साहब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। तो फिर हमने कोई 4-5 बजे हमें भी वहाँ पर बैठे, आपका तो नाम आया था 9-10 बजे, मगर 2 बजे से चल रहा था जलसा, मजदूरों का ग्रुप आ रहे थे। तो उसमें मैंने नज़म पढ़ी वो करके शफी कोई इनकलाबी चाह रहा था, शब्बार आज़मी हमारे गुरु के, मैंने कहा ये इनकलाबी में बहुत अच्छी शायरी है, सही कि जमहूरियत हमारे मसाइल का हल नहीं, हमको तो एक निज़ाम मईशत भी चाहिए, ऐसा निज़ाम जिसमें हुकूमत करें आवाम, ऐसा निज़ाम जिसमें मुसावात हो तमाम, ऐसा निज़ाम जिसमें हो रोटी का इंतज़ाम, ऐसा निज़ाम जिसमें हो इंसान के इंतज़ाम, जमहूरियत का हल बड़े। तो 4 बंद पढ़े, जागीरदारियत का नाम शान रहे, सरमायादारियत फ़कत एक दास्तान रहे, सबको छिपाने के लिए कोई मका रहे, तालीम ऐसी हो कि न जन से गिरा रहे। तो पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में आवाज़ को ट्रैवल करते हुए देखा। तो मजमा ऐसा था, जो जलसा था 5 नंबर बंदी बिल्कुल सीधा था, और 2-3 बजे मजदूर आ रहे थे, तो आवाज़ और लाउड स्पीकर हर जगह तो होती नहीं थी जैसे यहाँ पर। तो उधर के कोने से जब इसने जब आपका खत्म किया, तो यहाँ से उसने जब ताली बजाई, तो अभी समझ 1000 लोगों ने बजाई, फिर तो दूसरे उसके बाद वहाँ से 2000 का ताली उसके बाद पहुँची थी। तो जब वो ताली बजती थी तो स्टेज पर हवा की तलाश है, और आपने देखा तो वो ताली जो है बज नहीं रही, वो हवा जो है चलती जा रही है आपके पास। तो मेरा तो ज़माना तालब इल्मी का ऐसा था, फिर हमें बहुत अच्छा दौर मिल गया। जब उसके बाद यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में आए, तो कराची यूनिवर्सिटी का माहौल उसके तो कमाल कर गया। हमसे 1 साल सीनियर जो थे परवीन शाकिर थी उसी यूनिवर्सिटी में, सरवत हुसैन थे, डॉक्टर हिलाल नकवी थे, इकबाल फरीदी थे, ताकर आदिल थे, हैदर मोहम्मद भी थे, ये एक पूरा जो जूनियर टर्म से फातिमा हसन, अयूब खावर, शाहिदा हसन। तो वो 2 साल तक पहले और 2 साल बाद ये फला होती थी, उसमें बज़्म तलबा। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं कि यहाँ से सब बहुत सीखा और साथ शायद में बैठते थे। ये ज़रूर था कि हमारे ज़माने में ये हमने कभी कोशिश नहीं की, मुशायरा है तो उसमें हमको पढ़ने का मौका मिले। ये कोई भी हमारे नौजवान इन सब का मैंने नाम लिया, तो
तो इतने बड़े बड़े शहर थे कराची में, अब तो ये जो पहला मजमा में छपा होता था तालुम शायद हमें नहीं पता तो सुने जाते ही नहीं। हम तो सिफारिश करके एक दफ़ा बहुत 3-4 साल कोशिश की कस्टम का मुशाहरा तहरीर होता उसमें सामीन के असर से मिलता है, नाकामी भी ज़िंदगी की बड़ी नाकामी समझते थे कि ऐसे सामने भी नहीं, उसके लिए भी चाहिए था कि आपको कौन भी लाने में रहता कौन आपकी तवज्जो में खैर डाला। तो ये सब सिलसिले रहे, इनकी वजह से मुझे क्वारंटीन याद आ गया। और कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन का भी जिक्र किया था ज़्यादा साहब, तो मैं शब्बर आजमी के साथ यहाँ 74 में यहाँ आया पहली दफ़ा। तो ये तो अजीब और गरीब जगह थी। एक तो हर आदमी इस कमरे में जाना बना एंटर नहीं हो सकता था, ऊपर तो कोई बिल्कुल ही नहीं जा सकता, तो ख्वाब का बहुत असर था कि ऊपर जाए। तो वहीं बैठे रहते थे, इलेक्शन का जमाना था, बड़ी गहमा गहमी थी, मानो उधर बैठे हैं मीनार गन्ना साहब बैठे, उनका ग्रुप बैठा है, उधर हाफिज रहमान बैठे हैं, उधर अनु भाई बैठे हैं स्पोर्ट्स की। तो ये खुशी होती थी कि यही तो अजीब जगह थी। तो जो अनु भाई यहाँ बात करते थे, इंग्लैंड में टेस्ट हो रहा था, सुबह देखते थे डॉन हो गई, तो ये लगता था हम तो फर्स्ट टाइम हमारे पास पहली दफ़ा जब आप आए, जैसे पहले इश्क होता है तो आपको इस जगह से ऐसा हो, उधर बैठ उसी दिन हमें मिल गया मोहम्मद मियां, उन्होंने जिन भूत और परीत पे ऐसी तकनीकी का मैंने कहा तो कमाल का आदमी इस तरीके से सीखते थे। हम कुछ दिन हमने आपके मुसावात में लिखा भी नौकरी की तलाश के सिलसिले में, फिर अपना आर्ट्स काउंसिल में आके तो मेरा जिंदगी ऐसी रही।